of Social Work, USPM Meghalaya, Department of Community Medicine, TBC, AMU, and Department of Social Work, AMU Aligarh. This program is supported by Resident Doctors Association, ANMCH, AMU Aligarh, Non-Teaching Staff Coordination Committee, Aligarh, and SOCH, Beyond the Imagination. We are very much delighted to have amongst us as chief guest Professor Parvez Qamar Rizvi Sahab. He has been the former Dean Faculty of Social and Agricultural Sciences and chairperson currently Department of Plant Protection AMU Aligarh as our honorable chief guest of this program. I kindly request honor us to come on the dais. He has just arrived in the hall, and I now request Professor Makil Sahab to take the seat on the dais. He has been the former chairperson of Department of Sociology AMU Aligarh and the president of SREA, Delhi-based organization, and presently Professor of Social Work, USPM, University of Science and Technology, Meghalaya. I now request Dr. Lin Raghuvanshi ji, the CEO of PVCHR, to please come on the dais. I would like to call upon Ms. Shruti Nagarashi. She is associated with Women's Voice and has been the president of Savitri Bai Phule Women's Forum to please share the dais. I now request Ali Jafar Alini to please come on the dais. He is the assistant professor, Department of Community Medicine, JMHC, Aligarh. I also request Dr. Hussaini Haider Mehdi Sahab, the associate professor. He is not legally sharing his dais. I also request Mr. Satpal Singh. He is associated with Trust International. Please share the dais. Now I request Mr. Ratan Bosti to please come and share the dais. Now I request Janab Ali Ahmad Sahab for the recitation from the verses of Holy Quran.
We all are here gathered for a consultation program on a very important theme. And we all know that the good nutrition is the bedrock of the child survival and the development. We also know that the well-nourished children are much better able to grow, to play, to learn and participate in their daily activities, in their communities and societies. And they are also, in terms of resilience, more resilient in terms of at the time of any crisis situation. Yet, today, many children are not getting the nutrition as they require and they need to survive and thrive. So, this is especially true for the developing countries, this is especially true for the poorest countries, and also this is especially true for the poorest amongst the vulnerable children of our societies. So at least as per the reports, 1 in 3 children under 5 is affected by malnutrition in its most visible forms, and they are stunting, wasting and overweight. So, as we also know that nutrition is not a recognized right in any of the major international human rights institutions, but access to food, access to basic health services, access to adequate care services, basically are explicitly recognized as the rights in the International Bill of Human Rights and other important human rights instruments, such as the Convention on the Rights of the Child. And as food and health care are all necessary and very important, in as a combination will ensure good health, good nutrition, and in this sense, this nutrition becomes a right for every children, so for every child. So in order to deliberate and discuss on this very important issue in this consultation meeting, I now request Dr. Ali Jafar Abidi to please share his talk on need for nutrition, stress and growing obesity amongst children. Dr. Abdi, please come. Yes, on the dais, respected audience, ये अमल का भी है। यहाँ पे हम लोग जो बात करने आए हैं वो माल न्यूट्रिशन की बात करने आए हैं। जैसा कि नाम से पता चलता 4 टाइम्स बढ़ा तो 10 किलो का हो गया, लेकिन वही बच्चा अगर 2 किलो का पैदा हुआ, 2.25 किलो का पैदा हुआ और पैदाइश के बाद भी उसको सही ग़िज़ा मिलती रही और वो 4 टाइम्स बढ़ा तो भी 7.5 किलो और 8 किलो ही हो पाएगा, क्योंकि माल न्यूट्रिशन की रेंज में आ जाएगा। तो एक तरफ तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से हमको पता चला कि बहुत से बच्चे हमारे समाज में वैसे भी हो रहे हैं जिनको मोटापा हो रहा है। तो एक तरफ दुबले और एक तरफ मोटे, ये 5 से 7% पाए जा रहे हैं। सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं हो रहा है, रूरल एरियाज में भी हो रहा है। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है, क्यों हम कंसर्न हैं? हम कंसर्न ये है क्योंकि ये जो मोटापा है बचपने का, ये बाहर फ्यूचर की एज में भी नुकसान करता है। अगर कोई बच्चा मोटा है 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, तो बाद में चल के उसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियों के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और यही मकसद है, हम आज कुपोषण में छोटे मतलब दुबले बच्चों की और क्या कहते हैं स्टैंडर्ड बच्चों की बात करने नहीं आए हैं, हम इस तरह के बच्चों की बात करने ज्यादा आए हैं, क्योंकि ये जो है हमारे लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बायस बनता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें आई, डबल बर्डन ऑफ डिजीज कहने लगे। डबल बर्डन मतलब दुगना भार। दुगना भार कैसा, एक वो भार कि नंबर बच्चे जो है दुबले पतले भी हैं और मोटे भी हैं। दूसरा डबल बर्डन एक और उसमें कहा जाता है, आप ये देखिए कि हमारे आज की तारीख में कितने डेंगू के केसेस हुए। प्रॉब्लम ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये भी एक डबल बर्डन है। तो डबल बर्डन डबल तरह से हो रहा है।
कितना है डायबिटीज के पेशेंट को देखने के लिए, इंडिया इज नेक्स्ट टू चाइना इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज, इंडिया इज नंबर 1 इन ट्यूबरक्लोसिस। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भी परेशान हैं और किससे परेशान है, कम्युनिकेबल डिजीज से भी परेशान है। इसीलिए इस गोष्ठी का आयोजन बहुत बहुत जरूरी है। अब ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। दूसरी चीज क्या हो रही है, हमारे खान पान जो है वो बदल गया है। क्यों बदल गया है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। बहुत आसान है खाना पकाना, वो लकड़ी लाना, वो चूल्हा जलाना, वो फूकना, वो खत्म हो गया है। हमने गैस जलाई, अच्छा अब वो हार्ड मुझे लगती है जब गैस सामान खरीद के लिया है तो अवेलेबिलिटी भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है और इसी तरह अच्छा जो जैसे जैसे देश संपन्न होते हैं, जैसे जैसे हम क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। हम गांव से शहर की तरफ आते हैं तो उसकी वजह से भी खान पान बदल जाता है। उससे हो क्या रहा है, वही बैलेंस, खा ज्यादा रहे हैं और वर्जिश कम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं। और उसी में सोने में सुहागा क्या हो गया है, हमारी टारगेटेड विज्ञापन क्या हो गया उसके अंदर, हम दिखला रहे हैं कॉम्प्लान बॉय, ये लंबा हो रहा है, ये क्या कहते हैं बच्चा जो है दूध के साथ बॉर्नवीटा भी पीता है और उसके साथ साथ क्या हुआ, लेबल लग गया उस खाने के ऊपर कि ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स हैं, ये प्रोटीन रिच फूड है, ये कैल्शियम रिच फूड है, ये फूड क्या कहते हैं स्फूर्ति लाते हैं। उसकी वजह से क्या वो लेबल लगा दिया और हमने उस लेबल के अंदर नहीं पढ़ा। वो क्या रहा है कि आप ये बताइए हमें से कौन ऐसा है जिसको हम अभी 6 चम्मच अगर शुगर दें तो खा लेंगे? अगर हम आपको 6 चम्मच शक्कर दें तो क्या आप खा लेंगे एक साथ? शायद कोई खा ले, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन 250 ml की कोल्ड ड्रिंक में 6 चम्मच शुगर पड़ी होती है, वो आप पी लेते हैं। तो 6 चम्मच शुगर मतलब अगर हम 5 मिलीग्राम 5 ग्राम का एक चम्मच माने तो 30 ग्राम मतलब 120 कैलोरीज हमने ऐसे पुराने में लज्जत हो गया। आप अगर मिठाई खा लेते तो शायद आपको अच्छा भी लगता। ये है प्रॉब्लम और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतने क्या कहते हैं विद्वान लोग यहाँ पे आके इकट्ठा हुए। दूसरी चीज क्या है जो हमको यहाँ पे बतानी है और ये हमारे क्या कहते हैं जो आयोजक है उनके लिए भी वो है कि ये बताइए सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है ये कैंसरस है, लिखते हैं, बल्कि एक कंकाल की शक्ल भी बना देते हैं, कुछ गुटके के ऊपर उनके कैंसर की हम दिखलाते हैं। तो क्यों नहीं जो फूड पैकेट्स हैं और जो खासतौर पे जंक फूड जिसे हम कहते हैं हाई एनर्जी फूड्स की बात करें जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, सिर्फ शुगर होता है, उसके ऊपर भी इसी तरह की फोटो लगनी चाहिए कि आप खाओगे तो फूल के कुप्पा हो जाओगे, इस तरह की फोटो लगे, या आपका बच्चा जो है बाद में डायबिटिक या ओबीज हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमको ये नहीं बताना है, जागरूक ये नहीं करना है कि इसमें इतना एनर्जी है, इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना होना, क्योंकि बहुत सी जनता हमारी इस चीज को पहचानती है। डरावनी फोटो लगाएं, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो आज हम क्या कहते हैं नंबर 2 है डायबिटीज में, कल नंबर 1 भी हो सकते हैं। आज हमारे जो आप ये देखिए पहले डायबिटीज और हाइपरटेंशन 20 साल के बच्चे में हो रहा है, जो हार्ट अटैक 50 और 60 साल में होता था वो किसको होता था, सेठ जी को होता था। पुरानी पिक्चरें देखिए तो सेठ जी क्या छापा पड़ा और उन्होंने छाती यूं की और लेट गए। अब किसको होता है? हमारा आप लोगों के साथ यही है कि जो खाएं फिजिकल एक्टिविटी रखें, अपने खाने में सब्जियों का सेवन जरूर रखें। और सब्जियों का मतलब ज्यादा लोग 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच में है, अगर सिर्फ और सिर्फ 150 मिनट एक हफ्ते हम वॉक कर लें तो भी हमारी गुड फिजिकल एक्टिविटी में इसको या आइडियल उसमें हम जोड़ सकते हैं। करना मुश्किल नहीं है, 20 मिनट प्रतिदिन। क्या हम 20 मिनट प्रतिदिन अपने लिए निकाल सकते हैं? यही हमारा करना है और हमको जागरूकता पैदा करना है कि किस तरह से जो हम खा रहे हैं हमको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। हम यहीं पे अपनी बात खत्म करेंगे क्योंकि अभी बहुत हमारे लर्नड और भी स्पीकर्स मौजूद हैं और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीपल नेटवर्क की और ANU स्टाफ एसोसिएशन, नॉन टीचिंग एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और सोच। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस मंच पर जगह दी कि मैं कुछ बोल सकूँ। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो यूजुअली मैं जिस एज ग्रुप के साथ डील करता हूँ वो 13 साल के ऊपर जो पेशेंट होते हैं वो होते हैं। ये सब्जेक्ट वैसे तो पीडियाट्रिक्स का ज़्यादा है, लेकिन इसमें ये मौजूद ऐसा है कि बहुत बच्चे और एडल्ट्स दोनों इसमें इकट्ठा हो जाते हैं। और मैं इसमें थोड़ा एक इमोशनल इशू मेरे साथ भी है, तो मैं इस पर ज़रा इसलिए कुछ बात करना चाहूँगा कि देखिए, चाहे वो कोई भी मजहब हो इस दुनिया में, सब लोग इस बात को सब मानते हैं कि इंसान 2 हिस्सों का बना हुआ है। एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है, या उसका शरीर है और उसकी आत्मा है। देखिए, दोनों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है एक इंसान को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने के लिए। अगर आप खिला खिला के किसी को मुश्तंडा बना देंगे और आगे जाके वो जाके गुंडा बदमाश बन जाए और राइटिंग करे, तो ऐसे शख्स की क्या जरूरत है हमारे देश में? ऐसे शख्स का कोई काम नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब दोनों चीज होना चाहिए, उसका शरीर भी नरिश्ड हो, उसकी आत्मा भी नरिश्ड हो। malnourishment of the soul या malnourishment of the body both are harmful for this nation। हमें इस वक्त दोनों पे तवज्जो देना है। जहाँ तक न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी का तस्करा है, वो तो देखिए मुझसे ज्यादा लर्नड लोग यहाँ मौजूद हैं और मेरे सीनियर डॉक्टर अली जाफर बखूबी आपसे तस्करा कर चुके हैं। मैं उसको थोड़ा सा बयान कर दूंगा कि देखिए, एक मिसकंसेप्शन बहुत है हम लोगों के यहाँ कि जो चीज़ महंगी है वही अच्छी है। जो गरीब है वो ये समझता है कि मुझे अगर अपने बच्चे का खून बढ़ाना है तो उसको जब तक अनार में नहीं खिलाऊंगा तब तक उसका खून नहीं बढ़ेगा। ये टोटल मिसकंसेप्शन है। वो समझता है कि अगर मैं अपने छोटे बच्चे को सेरेलैक नहीं खिलाऊंगा तो मेरा बच्चा खूबसूरत सा गोरा सा नहीं बन पाएगा, जैसा कि उस डब्बे पे लिखा हुआ है। या अगर मैं अपने बच्चे को महंगी से महंगी ग़िज़ा नहीं खिलाऊंगा, मेरा बच्चा और लोगों के मुकाबले नहीं जा पाएगा। तो देखिए, यही सब मिसकंसेप्शन हम लोगों को क्लियर करने हैं। सबसे पहले कि जो चीज इजीली अवेलेबल है वो ही न्यूट्रिशियस है। अगर हम अपने बच्चों को खिचड़ी, दाल चावल उसमें घी डाल दें, या मुरमुरे और दूध दे दें, या शहद दे दें, या गुड़ खिला दें, या केला खिला दें। देखिए, वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक मिसकंसेप्शन है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। 1.5 किलो आप अगर सेब इकट्ठा कर देंगे एक जगह, तो वो 100 ग्राम पालक के बराबर है। उसका आयरन कंटेंट बराबर होता है। तो उससे ज्यादा आयरन तो पालक में मौजूद है, गुड़ में मौजूद है, केले में मौजूद है। एक्चुअली द सेइंग शुड बी अ बनाना अ डे शुड कीप अ डॉक्टर अवे, क्योंकि बनाना एक तो सस्ता है, बनाना में आयरन भी ज्यादा है और बाकी सारे न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो ये एजुकेशन हमें इम्पार्ट करना जरूरी है कि जो सस्ती चीजें हैं उन्हीं में न्यूट्रिएंट ज्यादा मौजूद है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जब तक महंगी ग़िज़ा नहीं दी जाएगी बच्चे को, बच्चा सेहतमंद नहीं होगा। मैं इससे ज्यादा इस मौजूद पर नहीं बोलूंगा। बाकी देखिए, रूहानी हेल्थ के लिए या हमारी आत्मा की हेल्थ के लिए द प्राइम न्यूट्रिएंट इज एजुकेशन। अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे अपने बच्चों को सही तरह से, तो हमारे बच्चे malnourished ही कहलाएंगे। और देखिए, एजुकेशन का मतलब डिग्री का हासिल करना नहीं, डिग्री एक अलग चीज है। स्कूल एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एजुकेटेड मींस द एब्सेंस ऑफ प्रेजुडिस। अगर प्रेजुडिस हमारे अंदर से नहीं गायब हो पा रहा है, मतलब अगर हमारे अंदर से हम इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भेदभाव से अगर दूर नहीं रख सकते अपने आप को, तो हम एजुकेटेड नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर आप अभी भी हिंदू मुस्लिम करेंगे और क्या कहते हैं जात के बिना पे एसोसिएट करेंगे, सुन्नी शिया करेंगे, तो साहब फिर इस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। इट डजंट मीन एनीथिंग, इट्स जस्ट अ सिंपल पीस ऑफ पेपर। जिसने नाजी कैंप्स में लोगों को पॉइजन किया था, 6 मिलियन जूस मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो भी बहुत एजुकेटेड लोग थे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज थी उनके पास। देखिए ऑल ऑफ देम, तो आज उनको किस तरह याद किया जाता है? They are not remembered in a very good light. तो education means true education. हम अपने बच्चों को एक तो स्कूल तो भेजना ही, वो तो इट्स
बेनिफिट्स आर गिवन, उसके अलावा जो होम एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्लीज अपनी टॉक यहीं खत्म करता हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग मौजूद हैं, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन लास्ट गोइंग सेंटेंस मेरा यही है प्लीज कि नरिशमेंट ऑफ द बॉडी एंड द सोल बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट और दोनों पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है, वरना हमारा देश आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Mehta, for sharing your valuable views and information. Now I request Mr. Satpal Singh, he is associated with Struts International, and I request you speaking on FOPL as important policy instrument for civil and consumer rights, importance of union profile, various types of union profile models, and status update of FOPL regulations in India. Please, sir. सबसे पहले मैं आप सभी का और मंच पर आसीन गणमान्य व्यक्तियों का सभी का अभिवादन करता हूँ और आप सभी प्रतिभागियों का उसके साथ साथ धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और आप हमें सुनेंगे मेन मुद्दे पे जो कि FOPL फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि FOPL है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और किस लिए इंडिया में इसको लागू करना आवश्यक है, और जो पॉलिसी है उसके बारे में भी बताऊंगा। दूसरी चीज़ है कि इसका स्टेटस क्या है इंडिया में अभी और हमें क्या करने की आवश्यकता है इन फ्यूचर। तो सबसे पहले FOPL है क्या? ये FOPL जो है वो एक तरीके से न्यूट्रिशन लेबलिंग है, सिस्टम है जो कि दो तरीके से अभी तक जैसे बैक ऑफ पैक लेबलिंग होता है और अब जो आगे जो इंडिया में जो हम अपनाने वाले हैं वो है FOPL जो कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग है, जिसके द्वारा पहली दृष्टि में किसी पैकेट को देखकर जान सकते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन कौन से हैं या जो कंसर्न जो NCD न्यूट्रिशन कौन से हैं कि है ना आपको ये लेना है नहीं लेना है, उसकी गुणवत्ता उससे मालूम पड़ जाएगी पहली दृष्टि में। दूसरा है कि उसमें आपको ग्राफिक्स के जरिए सिंबल्स के जरिए ये बताया जाएगा कि इसमें है क्या, पैकेट के अंदर है क्या। मेनली पहले जैसे हम जाते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसी तरीके से स्टोर पे जाते ही मालूम पड़ जाएगा इसमें बहुत सॉल्ट है, इसमें हाई फैट है, तो इन चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी दी जाएगी जो कि WHO के डेफिनेशन के अनुसार ये है। काफ़ी कंट्रीज में इसका जो है एक मैप है पूरा जो मेरे पास, शायद मैं ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन काफ़ी कंट्रीज ने ये मैंडेटरी किया है, वॉलंटरी किया है और अलग अलग तरीके के FOPL लागू किए हैं। तो ये करीब 1990 से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला। सबसे पहले की होल और हेल्थियर चॉइस से आए थे जो कि स्वीडन ने लागू किया था, फिर उसके बाद स्लोवेनिया, काफी अलग अलग कंट्री में, फिनलैंड, नाइजीरिया, लगभग 23 कंट्रीज ने इनको लागू कर रखा है और एट प्रेजेंट अभी भारत भी इसकी ओर अग्रसर है। दूसरा, जैसे आप जान पाएंगे इसमें भी अलग अलग तरीके के लेबल्स आते हैं। जैसे आपको ये बताना चाहूँगा कि ये है बैक ऑफ लेबल एंड फ्रंट ऑफ पैक। क्या होता है कि जिसमें न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन जो पीछे दी जाती है वो ज़्यादातर बैक में दी जाती है और जो फ्रंट में जो दी जाती है जैसे FOPL तो वो इस तरीके से दी जाती है। ये ऑर्डिनरी लेबल्स है जैसे आपको मालूम पड़ जाता है कि ये हाई फैट है, हाई शुगर है। जो भी व्यक्ति NCD से ग्रसित होता है, जैसे आप जिसको डायबिटीज है और तो वो शुगर वाला कम लेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। दूसरा, जिसको ओबीस है, जो मोटा है, मोटापा है, जिसको अधिक वजन है, वो परेशानी है, तो वो फैट कम लेगा। तो ये सारी चीजें आपको सीधे सीधे इस लेवल से मालूम हो जाती है। दूसरा, क्यों हमें
वो लगभग 65% लोग उन एनसीडीज के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। और जो अभी जो 5 जो रिस्क फैक्टर हैं मृत्यु दर के, उनमें से सबसे बड़े कारण जो हैं हमने, वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल, ओबेसिटी एंड ओवरवेट, जो कि मुख्य कारण बन चुके हैं हमारे यहाँ पे मृत्यु दर के। दूसरा है कि हम पे पूरे इंडिया पे लगभग 2001 आंकलन के अनुसार 2012 से 2030 तक जो आर्थिक भार इन एनसीडीज की वजह से होगा, इनकी वजह से होगा, वो है करीब यूएसडी में 4.58 ट्रिलियन, जो कि अच्छे खासे देश की और बड़े देशों की इकोनॉमी है। तो इस तरीके से इसके प्रमुख ये भी कारण है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, फूड जो इंटेक है, लेने का तरीका है और खाने का तरीका है, या पैकेज फूड की साइड ज्यादा अग्रसर होना, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पे एनसीडीज का। और इसीलिए ये जरूरी है कि एफपीएल के जरिए लोगों को एक ही झलक में जैसे मालूम होता है कि हाँ इस फूड में ये है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये हाई शुगर है, हाई फैट है, तो इस तरीके से इसलिए हमें एफपीएल की आवश्यकता है। दूसरा, एफपीएल क्या हेल्प करेगा, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, तो ये है कि ये कंज्यूमर को बताएगा, सचेत करेगा कि आपको ये चीज लेनी है कि नहीं लेनी है, ये अनहेल्दी है कि हेल्दी फूड है आपके। तो दबाव बनाएगा कि आपको कैसा फूड प्रोडक्शन करना है और उसको बदलाव भी कैसे करना है, जो जैसे ज़्यादा सॉल्ट शुगर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे बदलाव करेंगे एंड में। और ये दूसरा एक कंज्यूमर बिहेवियर को भी चेंज करेगा और लोग आसानी से इजीली उसको सिंपल वे में पता कर पाएंगे कि इसकी प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई इंडिया में। मेनली तो जब ये स्टार्ट हुई मार्च 2013 में एक एफएसएसएआई ने एक्सपर्ट कमेटी गठित की कि जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो जंक फूड है इन स्कूल, which also strongly recommends strengthening of nutrition labeling and front of packaging of calories, sugar, fat and saturated fat and salt। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है फ्रंट ऑफ पैकेज की, जो वार्ता वगैरह जो चलने चालू होती है। अप्रैल 2018 में एफएसएसएआई ने एक रेगुलेशन लेके आए, जो कि जरूरत थी उसका था कि सॉल्ट में जो है ना सॉल्ट वो डिक्लेयर नहीं किया था उन्होंने। तो फिर बाद में जो दिसंबर 2019 में लगभग एफएसएसएआई जो है उसने एफओपीएल मतलब जो फ्रंट ऑफ लेबलिंग को अलग रखते हुए थ्रेशोल्ड प्रपोज किए, रिवाइज किए, जो कि जो ड्राफ्ट रेगुलेशन था 2018-2019 में। फिर एफएसएसएआई ने नोटिफाई किया रेगुलेशंस को, लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस को 2020 में, जिसमें एफओपीएल इसका पार्ट नहीं रहा। अब जो 2021 में कंसल्टेशन मीटिंग्स चली है कि एफओपीएल को कैसे लागू किया जाए, तो उसके ऊपर काफी मतलब कि 6 से ज्यादा भी करीब कंसल्टेशन मीटिंग हुई, जिसमें रिप्रेजेंटेशंस था कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का और इंडस्ट्रीज का। पर वहाँ पे भी जो रिप्रेजेंटेशन था इंडस्ट्रीज का वो करीब 30 रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनमें से 25 इंडस्ट्रीज के थे, जो कि एक बहुत बड़ा तबका आप उसको जो अपोज कर रहा है वही उस मीटिंग में है, जहाँ की जो हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंज्यूमर यूनिटी, ट्रस्ट सोसाइटी, गर्ड्स, कंज्यूमर वॉइस, सीएजी, ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशन थी, सीएससी, जो कि वहाँ पे पूरी तरीके से डटी रही और काफी कुछ बदलाव भी उन्हीं के कारण हुए इसमें। मीटिंग के दौरान उनको सुना गया। फिर जो अब जो स्टेटस है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो सपोर्ट में थी कि वार्निंग लेबल्स आए,
तभी जो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनका मानना था कि GDA है, जो कि गाइडलाइंस पर सब ट्रैफिक लाइट की तरह होता है, और आप अगर जाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वैसे ही हमारे यहाँ पे जो लिटरेसी है रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत लो है, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको दरकिनार कर दिया गया। और अभी जो लेबल्स जो अदर कंट्रीज में जैसे लेबल्स चल रहे हैं, जैसे HRS है और वार्निंग लेबल्स, इन दोनों पे विचार विमर्श चल रहा है, और उसके लिए एक FSSAI ने सर्वे कमीशन किया है, जो कि नवंबर तक आ जाएगा, जो कि आपने जो हमारा ये IIM अहमदाबाद है वो कर रहा है इस सर्वे को। जैसे फिर बाद में भी इस पे विचार विमर्श हुआ, तो जो हमारे CEO हैं अरुण सिंह जी, उन्होंने एक जैसे काफी विचार विमर्श हुआ, तो उस पे ये जो हेल्थ एक तो वार्निंग लेवल्स और एक पर स्टडी के लिए बोला है, जो HRS है, हेल्थ स्टाफ रेटिंग एंड न्यूट्री स्कोर्स पे, जो कि आप इस स्टडी के बाद मालूम होगा कि किसका कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंडिया के लिए सूटेबल है। तो ये था अभी जो स्टेटस है, वो करीब नवंबर में हमें मालूम पड़ पाएगा कि क्या क्या रहने वाला है एक सर्वे के बाद, जो कि नेशनल वाइड सर्वे होगा, और वो IIM अहमदाबाद कर रहे थे। फिर है जो आज बच्चों के बारे में बात हो रही है और न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है, चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में, तो एक FSSAI का एक और रेगुलेशन है जो कि 2019 में आया, और सेफ फूड हेल्दी डाइट्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ये 2019 में एक रेगुलेशन आया, जिसके हिसाब से जो स्कूल अथॉरिटी हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जो भी पैकेज फूड आ रहा है आपकी कैंटीन में, मैच में, कहीं पर भी, उसको जो ट्रांसफैट है उसके अंदर, या फिर हाई शुगर है, हाई सॉल्ट है, तो उसको बैन करना होगा, उनको बिल्कुल बंद करना होगा, वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते, जो कि 50 मीटर के दायरे में आपको ये फूड नहीं मिल सकता। दूसरा चीज है कि उसमें आप 50 मीटर के दायरे में उसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते, और जो फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरर हैं जो कि ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो उस स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे अगर जैसे स्कूल्स में कोई कैंटीन है और वो अगर सेल कर रहा है ऐसी चीज, तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है, जो कि स्कूल अथॉरिटी को लेना आवश्यक है इस रेगुलेशन के अनुसार। दूसरा है कि द स्टेट फूड अथॉरिटी आल्सो शैल कंडक्ट सर्वेलेंस एंड पीरियोडिक लेवल पे उनका इंस्पेक्शन होना जरूरी है उनके स्कूल्स का। तो लेबल्स कितने टाइप का, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ लेबल्स। सो पहले एक सबसे पहले जो आया वो एंडोर्समेंट लोगोस आए, जो कि हेल्थियर चॉइस और की होल से आए, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा दिया गया होता, उसमें ये नहीं कहा गया था कि कौन सा न्यूट्रिशन और मतलब कि अच्छा दिखाने के लिए वो ओवरशैडो करता है, क्योंकि उसमें कोई खराब न्यूट्रिएंट भी होगा अपने लिए, जैसे जो हानिकारक है अपनी सेहत के लिए, वो भी उसमें मतलब कि ओवरशैडो हो जाएगा। तो उसके लिए काफी देशों ने उसको अपनाया, लेकिन उससे कोई लोग बाग ब्रांड के हिसाब से वो खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद उसका जो असर है, जो मेन होना चाहिए था, जो उद्देश्य था, पर्पस था कि है ना एनसीडी या ओबेसिटी और इन चीज़ों में कमी आनी चाहिए, वो नहीं आई। फिर एक दूसरा जो टाइप ऑफ लेवल है वो है समरी इंडिकेटर सिस्टम, जिसमें कि न्यूट्री स्कोर और हेल्थ स्टार रेटिंग होती है, जो कि इस तरीके से होते हैं
शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये यहाँ से ये रेड से और ग्रीन की साइड जाता है। और यहाँ पे ये हेल्थ स्टार रेटिंग, जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए अभी आने लगा है, जैसे फ्रिज पे होता है कि कितनी लाइट सेव कर सकता है, कितना इसमें एनर्जी एफिशिएंट है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रेटिंग का भी लोगो आया। पर इसमें लोग क्या है कि ज़्यादातर जैसे किसी में अगर मात्रा प्रोटीन की ज़्यादा कर दी है और शुगर का भी लेवल ज़्यादा बढ़ा दिया है, अब वो प्रोटीन को ज़्यादा दर्शा रहे हैं और शुगर को कम दर्शा रहे हैं, तो उससे क्या है कि लोग जो GDA की जो बात हुई तो वो ऐसे लेवल्स थे तो जिनमें पर सर्व का 100 ग्राम और ये काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के द्वारा उन्होंने समझाया, जो कि बहुत ही मतलब कि लोगों को समझ में नहीं आया और कॉम्प्लेक्स रहा। काफ़ी कंट्रीज में ऐसा देखा गया। तो वार्निंग लेबल्स जो थे उनका महत्व ज़्यादा देखने को मिला। जैसे नेगेटिव न्यूट्रिएंट जो थे इसमें ट्रैफिक लाइट GDA में वो अनक्लियर थे, मिक्स मैसेज था, रेड और ग्रीन कलर्स थे पैकेज में, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, नंबर पर सर बेसिस पे थे, तो इसलिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। Now I will talk about what are the warning labels. Warning labels में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से होते हैं warnings हैं। तो उसमें नंबर ही होते हैं, no numbers, use of colors और symbols, it is easy to understand। सबसे प्रमुख चीज़ है वो आराम से आसानी से समझ में आते हैं। फिर वो एक वार्निंग देते हैं कि आप हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट है तो आप इसको मत लीजिए। दूसरा है कि ये एविडेंस जो इमर्ज हो रहे हैं चिली से, मैक्सिको से और ब्राज़ील से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनसे देखा गया है कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है वहाँ पे काफ़ी कंज्यूम की जाती थी चिली में, तो उसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला है कि 23% रिडक्शन हुआ जब ये वार्निंग लेबल्स उनके लगे, और फिर उसके कारण काफ़ी रिडक्शन आया ओबेसिटी केसेस में और सारी चीज़ों में। तो अब हमारे जो मुद्दे हैं वो ये है कि फॉर्मेट ऑफ FOPL कैसा होना चाहिए, जिसपे अधिकतर बैठकें हो चुकी हैं और हो सकता है कि नवंबर तक वो जब सर्वे आ जाएगा तो हमें मालूम हो जाएगा। दूसरा थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, हाई लेवल कितना होना चाहिए, उसके ऊपर विचार चल रहा है। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो टाइमलाइंस हैं उसके ऊपर कितने सालों में ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसको कंप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे पहले 30% तक कर पाएंगे, फिर 15% तक कर पाएंगे, फिर अगले साल मतलब 21 साल में ये पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग FOPL, सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ की चुनौतियाँ हैं वो ये हैं कि लोगों में कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत कम है, जो कि इवन जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनको भी इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ फूड इंडस्ट्री, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इसका ग्रोथ कर रही है। दूसरा, उनकी डिले टैक्टिक्स हैं कि ये नहीं, ये मॉडल लेके आ जाना चाहिए, फिर उनको उलझाते रहते हैं, फिर आगे चीज़ बढ़ नहीं पाती। फिर दूसरा है लैक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट कैपेसिटी, जो इंडिया की बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे रेगुलेशंस हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो पाता है। शॉर्टेज ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, ये अगर वो हैं भी तो उनकी ट्रेनिंग्स रेगुलर टाइम पे नहीं होती है, क्योंकि मैंने जब ट्रांसपेरेंट पे काम किया तो ये मालूम हुआ कि जब मैं एक डेटाबेस में गया और डेटा माइनिंग की तो पता चला कि वहाँ पे आधे तो हेड ऑफ पे ले रखते हैं नंबर्स के, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रखते हैं, फिर वो भी आधे हैं, क्या
कंक्लूड करना चाहूँगा इसके साथ कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। मास लेवल कंज्यूमर अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जैसे आप सभी लोग आए हैं तो आगे जो भी आज आप यहाँ से सुनकर जाएं तो थोड़ा बदलाव आए या फिर आप किसी और को आगे इस मैसेज को देकर बढ़ा सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की साइड से पूरे कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेट करने की जरूरत है, जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, जो NGOs हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आज हम यहाँ पर हैं, उसी तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं और ये मैसेज दूर तक पहुँचाया जाए जितना हो सके। गाँव में, अपने शहरों में, मेरी तो गाँव वाले तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, तो ये हमारा मतलब कि आगे का उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि एक स्ट्रॉन्ग FOPL आए और बिना किसी डिले के, ये सबसे बड़ी चीज़ है दूसरे उनके प्रति। और यही है बस। थैंक यू। धन्यवाद। We have amongst us Professor Naseem Ahmed Sahab. He is the chairperson of the department. That it is a very challenging task because there are issues related with food industries, there are issues related with adopting guidelines, there are issues related with the cross sections of the societies also in terms of their understanding and adoption. कहीं ना कहीं पैनल डिस्कशन में ये सारी चीज़ें आएंगी कि कैसे एटलीस्ट जो इलिटरेट सेक्शन है उसको ये सारी चीज़ें बताई जाए, कैसे एडवोकेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाई जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे एक अपील है, एक गुजारिश है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं, लेकिन आप लोग कुछ महत्वपूर्ण बात आपस में कर रहे हैं। अगर बहुत ही अति आवश्यक है आप लोग को बात करना अवश्य कीजिए, लेकिन कृपया माहौल के बाहर कुछ ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ये हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमें इस मैसेज को लेके अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनीज़ में, अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव में, जहाँ जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ इस मैसेज को पहुँचाना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर हम खुद ध्यान से नहीं सुनेंगे, हम अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तो हम उस मैसेज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो फिर इस आज जो एक कंसल्टेंसी मीटिंग का जो मकसद है वो मकसद ही फॉर्म हो गया है, ये यकीनन एक ज़ाय हो जाएगा। Thank you, sir, for sharing your guidelines. So I request now Dr. Lenin Raghuvanshi to start a panel discussion. Our esteemed panelists are Professor Abdul Hakim Sahab. He is Professor of Department of Social Work, University of Science and Technology in Meghalaya, and has been the former chairperson of Department of Sociology in UNIVER. He is also very actively engaged and is the president of FAIR, that is Delhi-based NGO. He is very actively engaged with that particular FAIR organization also. He has very rich experience in almost diverse experience in such fields. We have amongst us Ms. Shruti Raghuvanshi, Madam, is associated with Women's Watch. She is the convener of Savitri Bai Phule Women's Forum. Our other panelists, one of the panelists, Dr. Khader Hussaini, has already spoken, and because of some urgent issues, he has gone for his own another, you can say, preoccupations in the department. We are also have amongst us, we have Dr. Simon Hughes. He is associated with Soch Beyond the Imagination and another panelist. And I don't know if Dr. Mohammad Kashif is present here. Dr. Mohammad Kashif is also one of the panelists, and he is the president of Resident Doctors Association, JNMCH, AMU Aligarh. So I request Dr. Lenin Raghuvanshi to start the session. साथियों, जो बातचीत हुई थी कि पोषण बहुत जरूरी है, पोषण में दोनों चीजें
ज़्यादा पोषण भी खतरनाक है, कम पोषण भी खतरनाक है। 3 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं जो आप कहते हैं कि संक्रमण से होने हैं, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। ये 3 चीज़ों से होते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो जो नमक कितना है खाने में, वसा फैट कितनी है, और साथ साथ जो है चीनी कितनी है, शुगर कितनी है। ये 3 चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और 3 प्रोडक्ट्स के लिए डेयरी पे जो यूज होने वाले प्रोडक्ट है, या जो हम फूड खाते हैं पैकेट फूड जो होता है, या फिर हम जो बेवरेज है जैसे पेप्सी, कोका कोला और ऐसे। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये सब इंडस्ट्री एफओपीएल के साथ आने वाली है। एफओपीएल का मतलब है कि फ्रंट में होना चाहिए, सीधे सीधे सामने होना चाहिए, पीछे जो है तो आप लिखते हैं ठीक है, कि फ्रंट में जो है क्योंकि हम लोगों के यहाँ पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा नहीं है, भाषाएं अलग अलग हैं, जिस इलाके में उर्दू बोली जाती है, जिस इलाके में उड़िया बोली जाती है, जिस इलाके में हिंदी बोली जाती है, उसमें साफ साफ लिखा हो इसमें चीनी ज़्यादा हो, अलर्ट करते हुए, इसमें नमक ज़्यादा हो, इसमें जो है शुगर ज़्यादा है, इसमें जो है फैट ज़्यादा है। तो और आप देख रहे हो कि 60% से ज़्यादा जो है मृत्यु जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से हो रही है। अगर आप एनसीडी से ग्रसित हैं और कोविड जैसी बीमारी अगर आपको हो गई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आजकल की बात हम लोग मुसहरों के भीतर एक काम करते हैं, तो मुसहर लोग भी अपना खाने के लिए मैगी पाने लग गया, वो भी काम करने जा रही है, ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हम उसमें एक तरफ तो अंडर न्यूट्रिशन है और ऊपर से जो है ज़्यादा स्वाद, ज़्यादा नमक, ज़्यादा लोगों के दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित है। तो ये जो दोनों बढ़ रहे हैं बहुत खतरनाक है। तो आप ये बताइए कि हमको ये होना चाहिए कि नहीं कि फ्रंट में जो है सरकार हर आदमी को बताए, ये होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए आज इकट्ठा है कि जो हम अकादमिक लोग हैं, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले हमने बनारस यूनिवर्सिटी में बातचीत की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ रहे कि देश भर में एक माहौल बनाया जा सके और दबाव बनाया जा सके। और ये आप जानते हैं कि इंडस्ट्री अडानी है, कोका कोला है, पेप्सी है, हल्दीराम है, और ये लोग कोई साधारण लोग नहीं है। और जनता का जो है स्वास्थ्य जो है स्टेक पे है। और कोविड के समय पोषण की बात पता चल गई है कि जिनका अच्छा पोषण रहा है उनकी मृत्यु दर बहुत कम रही है, उनकी रिकवरी बहुत रही है और वो ग्रसित भी कम हो गए। तो इसी की बातचीत के लिए हम लोग आगे बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब को इसलिए मैं बुला रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि उन्होंने बच्चों के मुद्दे में बहुत सघन काम किया है और वो बहुत ही एक्टिव है। और इसलिए हमने थोड़ा सा ये रखा कि हम लोग एकदम स्पष्ट रहे कि यहाँ से एक चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम स्वास्थ्य मंत्री को सीधे सीधे कहें कि एफओपीएल लागू होना चाहिए। और सीधे सीधे आप बताइए इलाज में कि नमक ज़्यादा है कि चीनी ज़्यादा है कि चीनी है, और सब बातें हम आप करेंगे प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर प्रोफेसर कमर रिजवी, हम लोग प्यार से पीक्यूआर कहते हैं। बहुत सारे लोग चेयरमैन मेरे बहुत सारे दोस्त और साथी हैं। डॉक्टर लेनिन रघुवंशी नई दोस्ती की शुरुआत हुई है। निशुकी नागवंशी, डॉक्टर सिमन जज, प्रोफेसर नसीम अहमद, दोस्तों साथी, महान न्यूट्रिशन का जिला मिसाल तो मैं खुद ही हूँ। प्रीमेच्योर बर्थ एंड स्टंटिंग। मैं जब पीएचडी कर रहा था गौड़ा हॉल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वाहिद मेरे जानकारी में हॉस्टल है जो एक स्टूडेंट को 2 कमरे मिलते हैं। ग्रेट प्रिविलेज। मुझे अक्सर मलेरिया हुआ करता था। डॉक्टर शर्मा हमारे हॉस्टल में डॉक्टर हुआ करते थे। जब बातचीत शुरू हुई तो मालूम ये हुआ कि वो स्टूडेंट जो पीएचडी करता है, जो चुनिंदा में से जिसका परसेंटेज देखा जाए तो 1 या 2% होंगे, सब ज़्यादातर लोग JRF प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते थे। हमें 1800 कैलोरी से
वार्ड के मैसेज। तो अंडर न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे ओवर न्यूट्रिशन की बात करें, तो ये किसी एक तबका तक ही सीमित नहीं है। ये जो आज जिस समस्या पे चर्चा कर रहे हैं, जिस मसले पे आज हम लोग बात करने के लिए यहाँ आए हैं, इसको काफी तवज्जो से सुन के समझ के एक आवाज उठानी है पूरे देश में, और देश में क्यों पूरी दुनिया में, कि हमें किस दिशा में जाना है। मेरे साथी अभी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जिक्र किया श्री सत्यपाल सिंह जी FOPL के बारे में। ये मूवमेंट है, और इस मूवमेंट ये तभी कामयाब होगा, सफल होगा, जब हम सब इसको अच्छी तरह समझेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने दोस्त, मोहल्ले के लोग, जहाँ जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, जो यहाँ हम समझ के जा रहे हैं, यहाँ से बाकी कोई नॉर्मली हम लोग यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और वो कामयाब सेमिनार माना जाता है जो एक आम स्टूडेंट या टीचर के जहन से ऊपर हो जाए, जो आम फाम ना हो, जो समझ से बाहर की बात हो। ये अभी मीटिंग मेघालय, आसाम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, काफी जगह चेंजेस हुआ। दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक तो कल्चर और एक टाइम। बहुत आम फाम बात मैं करना चाहूँगा। कल्चर से बात ये है कि जो हमारा खाने का जो रीति रिवाज है वो बहुत हद तक कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होता है। एक नाइटा जिसमें मुसहर भी काम है। मुसहर जो साउथ इंडिया में ये देखा गया कि मुसहर लोग जो है वो कुछ वो लोकल उसको खाते हैं। उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत सारा, लेकिन मैं ये सिखाऊंगा कि एक रिसर्च है, उसमें मुसहर को चूहा को पकड़ने का स्पेशलाइजेशन था, उसको खाते थे, खेतों में पकड़ते थे और खाना करते थे। वो एक प्रैक्टिस था, लेकिन अब तो कैपिटलिज्म में एक मेरे जहन में इस बात को बैठा दिया गया कि जो टीवी में ऐड आ रहा है, जो कॉस्टली चीजें हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, और जो टीवी में ऐड नहीं आ रहा है
शहरों में आसानी से मिल रहा है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पे उसको तो हम वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं। और जिसको हम गुड हैबिट करें, बैड हैबिट में क्या है कि जो नुकसानदेह है कि खाना बनाने का वो तरीका जिसमें समय अधिक लगता है, ज़्यादा लगता है, वो धीरे धीरे कैलेस्ट्रॉल होता जाता है। वो खाना बनाने का वो तरीका है वो जल्दी जिसमें समय कम लगे, मेट्रोपोलाइजेशन उसी का एक हिस्सा है। वो काफी फैशनेबल हो रहा है, वो काफी मॉडर्नाइज हो रहा है और हम उसको अपना रहे हैं। तो कुछ तो समय की बात, लेकिन क्या उस समय को बचाने के लिए हम अपने सेहत से खिलवाड़ करें, इस पे चिंता करने की आवश्यकता है। तो जो दो पॉइंट है, कल्चर, फूड कल्चर, आप किसी भी हिस्से में जाए, यूपी, बिहार, आसाम, मेघालय, पंजाब, हर जगह कुछ न कुछ लोकल फूड है जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है, बहुत अच्छा बैलेंस। हम उसको छोड़ रहे हैं, क्या अपना रहे हैं? हॉट डॉग, हैमबर्गर, पिज्जा। क्योंकि स्कूल में तो बच्चे यही सीख के आ रहे हैं ना, फिर हम मॉडर्नाइज कैसे कहलाएंगे, एडवांस कैसे कहलाएंगे, और फिर दोस्तों को ये कैसे कहें कि आज हमने पिज्जा खाया, हॉट डॉग खाया, हैमबर्गर खाया। तो सिर्फ बात खाने की नहीं, बस यही हम अपने आप को, अपनी सेहत को काफी गिरा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें चिंतन की आवश्यकता है, इसमें सोचें। अभी जो मेन मुद्दा है, आखिर सेहत, ये मेरा अपना बॉडी है और हमें ये हक है कि कंपनी अगर कोई चीज बना रही तो वो हमें बताए वो हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह है और किस हद तक फायदेमंद है। एक आम जानकारी का हक और जब हम अपनी आवाज उठाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो एनजीओ का हो, चाहे वो और दूसरी जगहों का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, ये बल्कि पॉलिटिकल एजेंडा में ये बात क्यों नहीं आनी चाहिए? पॉलिटिकल जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लीडर लोग ये देखते हैं कि भाई हम क्या क्या चीज जीपी दे, फ्रिज दे, टैबलेट दे, कंप्यूटर दे, क्या दे जिससे कि हम वोट खरीद सकें। तो अगर बिकनाई है तो हम अपनी सेहत पे क्यों ना बिके, और हम इस बात के लिए प्रेशर डालें कि ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के एजेंडा में ये बात आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बात हो, उससे कोई बात नहीं। और भाई हम लोग कैपिटलिज्म में क्या करते हैं? कैपिटलिज्म में मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। कोई भी कंपनी हो, कंपनी क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। उसके लिए अगर कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ भी बनाना है तो चर्चा बेटा सूली पे राम तेरा बना कर, ये एक कंपनी का एक पॉलिसी हिडन बात है। 50 साल पुरानी, तो आज तक ऐसा नहीं हो पाया जिस स्पीड के साथ हम आज इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे वो और दूसरे जरिए से हो, सोशल मीडिया के जरिए से। होता ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन FOPL की शक्ल में आनी चाहिए, उसमें इतनी देर क्यों, उसमें इतना दुविधा क्यों, उसमें इतना संकोच क्यों? मेरे ख्याल से इस मंच से और इस तरह के और भी सैकड़ों मंच से इस बात को, आवाज़ को उठाने की जरूरत है कि ये जो FOPL का एक मुद्दा है उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे
इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। ये आज हम इस मंच पे हम आके अपनी बात को शेयर कर पा रहे हैं। ये हम लोगों ने कुछ न्यूट्रिशन पे भी कुछ काम किया है चाइल्ड चिल्ड्रन पे। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से वो एक पुरानी हैबिट्स पे खाने के वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है और उसको पैरासोनिक बनता जा रहा है। शायद इस बात की जरूरत है कि हम अपने, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि पुरानी रीति रिवाज का बेहतर है, लेकिन गुड प्रैक्टिसेस एंड बैड प्रैक्टिसेस, जो बैड प्रैक्टिसेस है वो तो हमें बंद करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे कल्चर में कोई गुड प्रैक्टिसेस है उसको ना सिर्फ हमें कंटिन्यू करना चाहिए, बल्कि अगर वो बढ़ रहा है तो उसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया हूँ कि मुझे अपने अनुभव को शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद। प्रोफेसर बात साहब ने एक बड़ी बात कही कि जो हमारी डायवर्सिटी की सोसाइटी की रसूल ने भी डायवर्सिटी का थ्योरी दिया था, उसके लिए तो खतरा हुआ है, हो रही है न्यूलिबरल पॉलिसी इकट्ठी दुनिया था। अब उस इकट्ठी दुनिया में एक तरफ ये जो आंदोलन है FOPL की बात करें, और वो FOPL जो है स्पष्ट उन्हीं की भाषा में होना चाहिए, उसी इलाके में डायवर्सिटी को देनी होगी तो प्रॉफिट करवाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि हमको जो कल्चर जो डायवर्सिटी है, फूड डायवर्सिटी है, उसको भी लाना चाहिए। हम ज़्यादा बात न करते हैं औरतें कैसे सोचती हैं, औरतों को और औरतें जो है तो खाने को कैसे देखती हैं, FOPL को कैसे देखती हैं। मैं श्रुति जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और उस बात को औरतों के नज़रिए से देखने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है सबका अलग नजरिया है, बेलाल का अलग नजरिया था जो सुनने देने की कोशिश की, उस तरह से फातिमा की तरफ से अलग नजरिया देने की कोशिश की, तो हम उसको भी समझने की कोशिश। पैनलिस्ट और हॉल में स्पीकर और सबको नमस्कार। मुझे कहा गया कि औरतों के नज़रिए को रखना है, थोड़ा बहुत साफ हो गया। इस पिछले काफ़ी दिनों से इन मुद्दों पे बात करते हुए मतलब ये ना समझा जाए जब से हम लोग इस अभियान में लगे हैं, बल्कि पीछे 3-4 सालों से कुछ स्वास्थ्य के प्रति जो अपनी चेतना है उसके बाद से नज़रिया बदल गया। तो वो फिर दूसरी बात है, वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, आज की इस मीटिंग सेमिनार को सपोर्ट कर रहा है मेरा वो विचार, और हम बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर औरतों का नज़रिया देखा जाए तो जो अधिक सीधे हम बात करें कि काम का जो अधिक उनके ऊपर दबाव है और अब कमाने का भी दबाव है,